All right. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning. All right. Within last lecture, what we have seen? We have seen get student details page of faculty home area, within which we have created 3 different kinds of report. First report was on age criteria, second report was on gender criteria, and third report was of the combination of the both, that is age as well as gender, right? So that we have already seen in faculty home area. So faculty home area was completed in last lecture. Within this lecture, first of all, we will create admin home area, and after that we will also see whole website in a particular flow, right? पूरी website हम एक flow में देखेंगे कि कैसे हम पहले registration कर सकते हैं, उसके बाद different kind of users के हिसाब से हम login कर सकते हैं, उसके अंदर activities कर सकते हैं, and after that by the end log out, right? So today we will complete our website. So let's start. So if we want to create admin home area, so first of all we need to create master page for admin. So for that purpose, within Solution Explorer, I have right clicked on website. So within this we will select add new item, right? So dialog box has appeared. We will select second option, that is master page. I will change its name as admin master page dot master, right? Right now I don't want to create this admin master page from another master page. So we need to see that this checkbox, that is select master page, must be unchecked. ये uncheck होना चाहिए, right? Because हमें ये master page कोई और master page के ऊपर से create नहीं करना है, right? And after that I will click on add button. As soon as I will click on add button, obviously उसका source view open होगा, और सोर्स व्यू के अंदर हम फर्स्ट टास्क करेंगे कि हमें कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल को रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमें यहाँ पे नहीं रखना है. So I will remove this content placeholder from the source view. So now the tags are within form, it is div tag, right? So this is the same procedure we are doing on all the master pages. All right, now we will move on to design view. Within design view, I will place my cursor within div tag, right? And within div tag, I need to add a table, and I will use the concept of nested table. You already know this. Now, what designing I want to do? I will do a simple design. I will add a table of 3 rows, 1 column. First row will be considered as header. Second row, on the left hand side, I will put links, and on the right hand side, I will display the content. And the third row will be for footer. So the same procedure, I have kept my cursor within div tag. From table menu, I will use insert table option. Within insert table option, I will provide rows as 3, columns as 1. And I will increase the size of border, that is size equal to 1. I will set color. Let's take it dark color green, and I will click on OK. So over here, one table is added, that is of 3 rows and 1 column. Now again the same procedure, I will place my cursor within the first row, and I will place one another table, that is 1 row, 1 column. So from table menu, I will select insert table, that is 1 row and 1 column. Along with that, I will set the border to 1, and I will take some dark color for the border, and I will click on OK. So over here another table is added. Now within this table, again we will write a simple message, that is admin home area, right? And now we will set some properties for this column. So I have kept my cursor within this column, and I will move on to property window. Within property window, I will set align property as center, right? I have set align property as center. Background color, that is BG color property, I will set it to some light. Let's take it this one. I will click on OK. After that, we will set style property. Style property, within that font family, as usual, MS Sans Serif. So let's move on to that. It's over here. Font size, again we will set some, let's take it value, and within value we will set point. Let's take it, for example, 60, right? After that, weight, I will set it to bold. Color, some dark color I will take it. Let's take it this one.
and I will click on OK. Right, so our header is created, that is admin home area. Now let's create our footer. Within footer, again we need to place one table, so I will move on to table menu and insert table. I will put the table, that is one row, one column. Again, I will set the border size to 1 and color to some dark color, and I will click on OK. So again, another table is added within the footer. Now let's set some properties. So I have moved to property area. Align property will be center. Background color we will set same as we have set it for this header. I think it was this one, right? Okay. And after that, style property, I will set it as font family as again MS Sans Serif. It's over here. Then font size, again I will set it to value, so I can set the unit. I will set unit as point, and I will provide value as, for example, let's take it as 40, right? Font weight, I will set it to bold, and font color, again I will set it to the dark color, that is this one, and I will click on OK. Right, so over here column, we have set properties for the column. Now let's move on to source. Within source, I will specify first of all copyright symbol, that is ampersand copy semicolon, and I will write copyright reserved, right? And beside that I will write Dr. Nikisha Jariwala. All right, so let's move on to design. So oops, I think there is some mistake. Ampersand, okay, capital C, ampersand copy semicolon. So our footer has been created. I think font size is somewhat larger. इसको छोटी कर देते हैं. So let's move on to property window. Font size, we will take it as, for example, 20. It will be very small. I think 30 ले लेते हैं. And I will click on OK. All right. So हमारा footer भी create हो गया. Now I will keep my cursor within second row, and I will add one table. Within that table, that is one row, two columns table. For border size, I have set it to 1. Color, I am setting to some dark color. Let's take it this one, and I will click on OK. So right, हमने एक table add कर दिया, that is one row, two column. All right. Now what we will need to do, we need to set width of these two columns. So first column की width हम set करेंगे, let's take it as 200 pixels, right? उसकी height हम set करेंगे 350 pixels, जो हमने सारे home area में ली है. Align property I will set it to left, and V-align property I will set it to top, right? So मैंने सारी properties set कर दी. So let's move on to second column. Second column की width, by default it will be calculated. याद रखना, अभी तक हमने जो main table है उसकी width नहीं set की है, वो हम बाद में set करेंगे, right? So second column की width obviously automatic calculate हो जाएगी, but we need to set V-align property, that is to top, and we also need to set height, that is 350 pixels, right? So मैंने सारी properties set कर दी है. Now what left जो column है वहां पे हमें links चाहिए. So links के लिए हम tool box में जाएंगे. Tool box में से we can use any of the control जो हमें navigation provide करके दे. So right now I will use let's take it as link button controls. But the most important thing, जैसे हमने सारे home area में किया है कि लिंक्स प्रोवाइड करने से पहले हमें उसके पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि हम वो पेजेस को लिंक्स के साथ कनेक्ट कर पाए, राइट? सो ओवर हियर वन लास्ट थिंग वी विल सेट, और उसके बाद हम पेजेस क्रिएट कर देंगे. ये जो हमारा मेन टेबल है, दैट इज द आउटर मोस्ट टेबल, जो डायरेक्ट DIV टैग के अंदर हमने प्लेस किया था, राइट? वो टेबल की विड्थ हम सेट करेंगे. नाउ एज यू नो कि हमने जब पहले विड्थ सेट करने की ट्राई की थी, दैट इज इन फैकल्टी होम एरिया और स्टूडेंट होम एरिया में, तब प्रॉब्लम ये आया था कि हम डायरेक्ट विड्थ प्रॉपर्टी में सेट करेंगे, फिर भी वो हमें चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो CSS क्लास ऐड कर देता है.
और मैंने तभी भी आपको बोला था कि आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि अगर CSS क्लास ऐड हो गया है तो आप CSS क्लास में से आप विड्थ सेट कर सकते हो, और वो क्लास रिमूव कर दो तो विड्थ प्रॉपर्टी अपने आप वर्क करेगी, राइट। सो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली CSS क्लास ऐड हो गया है तो हम वहां पे ही चेंजेस कर देंगे। तो नीचे देखिए, see over here beside this is design, split and source। उसके बाद आप देखोगे तो आपको सारे टैग्स दिखाई दे रहे हैं। देखो HTML टैग, बॉडी टैग, फॉर्म टैग, div टैग एंड देन टेबल टैग। सो मैं ये टेबल टैग को सिलेक्ट करूंगी, राइट। सो हम वहां पे जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू सोर्स। जैसे ही मैंने सोर्स के ऊपर क्लिक किया, देखो पूरा टेबल सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे आ गया है। एंड ओवर हियर सी टेबल टैग के अंदर एक CSS क्लास है दैट इज style1। मीन्स इफ आई वांट टू सेट एनी प्रॉपर्टीज और इफ आई वांट टू डू एनी फॉर्मेटिंग तो मैं ये style1 जो CSS क्लास है उसके अंदर कर सकती हूँ। और इफ आई वांट टू यूज द प्रॉपर्टीज तो मुझे ये यहाँ से ये क्लास इक्वल टू style1 निकाल देना पड़ेगा, तो मैं प्रॉपर्टी विंडो में से भी प्रॉपर्टीज सेट कर सकती हूँ। बट ऑब्वियसली ये है तो हम यहाँ पे style1 पे जाएंगे। इट्स ओवर हियर। सी जैसे पहले भी हमने देखा है कि ये बाय डिफॉल्ट 100% होगा। हम इसको क्या सेट कर देंगे, हमारे सारे टेबल्स की साइज है 1000 पिक्सल्स। सो हम यहाँ पे इसको 1000 पिक्सल सेट कर देंगे, राइट, और इसको सेव कर देंगे, राइट। सो अब हम डिजाइन में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमारा टेबल थोड़ा छोटा हो गया, राइट, बिकॉज हमने पूरी स्क्रीन के साइज के ऊपर से हमने टेबल की विड्थ नहीं डिसाइड की है, हमने विड्थ फिक्स कर दी है दैट वी वांट अ टेबल ऑफ 1000 पिक्सेल्स। अनदर थिंग, हमें इसकी अलाइन प्रॉपर्टी भी सेट करनी पड़ेगी ताकि टेबल स्क्रीन के बीच में डिस्प्ले हो, राइट। सो लेट्स अगेन मूव ऑन टू सोर्स। सोर्स में हम जाएंगे टेबल, और टेबल के अंदर बाद में प्रॉपर्टी विंडो में वी विल सेट इट एज अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, राइट। सो अलाइन सेंटर सेट किया तो अब हमारा टेबल जो भी ये जो हमारा पेज है उसके सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है, राइट। यू कैन सी ओवर हियर। ऑलराइट, अब हम ये मास्टर पेज को अभी सेव कर देते हैं। अब ये मास्टर पेज पे से हम एडमिन होम एरिया के दूसरे पेजेस क्रिएट करते हैं। And as you know, if you want to create web forms or web pages from admin home area, what you can do, you need to move on to Solution Explorer. Within Solution Explorer, you will right click on website, select add new item. From the dialog box, you will select first option, that is web forms, and after that you will give the name of the page. First page that I will create will be admin home.aspx. Obviously ये admin home.aspx page is to be created from the master page. So मैं ये जो second checkbox है that is select master page उसको check करूंगी। I will click on add. So मुझे सारे master pages यहाँ पे list किए हुए मिलेंगे। From that I will select admin master page dot master and I will click on OK. जैसे ही मैं OK पे क्लिक करूंगी मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा और उसकी डिजाइन will be similar to the design that we have created on admin master page. All right, now we will create the second page. So again within Solution Explorer, I will right click on website, add new item. I will select first option, that is web form. Name of the page will be view faculties, view faculty.aspx, because मुझे ये पेज के ऊपर सारे faculties की डिटेल डिस्प्ले करनी है. So I will create the page that is view faculty.aspx. Now after that, as you can see, यहाँ पे जो second checkbox है that is select master page वो already check है, because हमने जब first page create किया था तब इसको check किया था. Now I will click on add. So over here again the master pages are there. I will select admin master page dot master and I will click on OK. So our second page is also created. Now let's create the last page, that is the third page. So again right click on the website within Solution Explorer, select add new item. From this list I will select web form, and after that I will write over here, for example, view feedback, because I want to display all the feedbacks that are given by the user to the admin. So the page is view feedback.aspx. I will check that the second checkbox is check or not. Obviously it is checked. I will click on add. I will select admin master page.master and I will click on OK.
So third page is also created for our admin home area. All right. So now we have all the pages for our admin home area. Now let's move on to the master page. और master page के ऊपर अब हम links provide करेंगे ताकि हम navigation provide कर पाए. All right. So if we want to provide links, we will move on to toolbox. From toolbox, I will use link button as I have already specified. So first link button I will place and I will move on to property window. Property window में हम इसकी ID property set करेंगे LBTN home, right? Because it is for home page और उसकी text property I will set it as home, right? Now as it is a link button, अगर मुझे ये link button के ऊपर navigation provide करना है तो मैं उसकी click event use कर सकती हूँ, right? So I will click double click on it. So उसकी click event open हो जाएगी. अब ये click event के ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा? We need to write response.redirect admin home.aspx. So it is over here response.redirect and within parenthesis double quotation I will write admin home.aspx, right? So it will move on to admin home page. All right. After that I will add second link. So I will click enter. Again I will add link button. I will move on to property window. I will give its name as LBTN. Second link as I want to place it as view faculty. So I will write over here view faculty and the text property will be faculty details. Faculty details and I will click enter. So this link is also created. Now if I want to navigate, इसके ऊपर मैं double click करूंगी. इसकी click event open होगी. On that I will write response.redirect. Within that the name of our page, that is parenthesis double quotation view faculty.aspx. That is the name of our page which we have created from admin master page. All right. Now third link. Third link is for displaying the feedback. So again I will place link button. I will change its properties, that is ID as LBTN feedback, right? Text property will be feedbacks, right? All right. Again I will double click on it. On its click event I will write response.redirect and within that parenthesis double quotation I will write view feedback. What is the name of our page? It is view feedback.aspx. All right. So we will write view feedback.aspx and double quotation over parenthesis over. All right. Now the last thing which we need to keep over, put over here is logout. So again, link button I have placed on the page. I will move on to ID property. I will give it as LBTN logout, right? Text property will be logout. All right. I will double click on it and I will connect index.aspx page. So I will write over here response.redirect and within parenthesis double quotation I will write index.aspx double quotation over parenthesis over. So now all the pages are connected, right? So again now what we need to do over here, हम यहाँ पे welcome message भी provide कर देते हैं. So obviously वो पहले आएगा welcome message. So I will create some space over here. I will write welcome ... and I will place one label control. This is the same procedure which we have already done within student home area and faculty home area. Label control की ID property we will set it as LBL uname, right? Text property को empty set कर देते हैं. अब obviously जब भी ये पेज लोड होता है मुझे ये जो लेबल है उसके अंदर यूजर नेम चाहिए. So obviously page load event पे we will write that is we will retrieve the value from the session जो हमने login पेज के ऊपर ऐड की हुई है, right? So I will double click. So page load event यहाँ पे open हुई. LBL uname.text is equal to session and within session the name of the variable is uname. So I have written that variable name within parenthesis double quotation and I will save the page. Right, so ये statement से क्या होगा, session में से uname का जो variable है उसकी value retrieve होगी और वो value LBL uname जो हमने यहाँ पे label place किया है उसके अंदर display हो जाएगी. Right, so that procedure is completed over here. Now मैंने एक और चीज पढ़ाई थी कि अगर आपको session को
डिस्ट्रॉय करना है तो आपको सेशन डॉट अबेंडन मेथड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, लॉगआउट की लिंक के ऊपर यूज करेंगे। सो लॉगआउट की लिंक के ऊपर वी विल राइट ओवर हियर सेशन डॉट अबेंडन, राइट। सो वो क्या करेगा, जैसे ही यूजर लॉग आउट करेगा उसका सेशन भी डिस्ट्रॉय कर देगा, और सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद वो उसको इंडेक्स पेज के ऊपर नेविगेट कर देगा, राइट। So almost all things are completed. Only the thing that is remaining is we need to place content placeholder over here. So second column में मैंने cursor रखा, और second column में I will place this content placeholder control, right? और content placeholder control place करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। Now see, I think हमारा पूरा master page डिजाइन हो गया है, लिंक्स भी कनेक्ट हो गई है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम इसके जो पेजेस है दैट इज एडमिन होम, व्यू फैकल्टी एंड व्यू फीडबैक, उसके ऊपर हम जो कनेक्ट करना है, मतलब जो कोडिंग करना है वो कर देते हैं, राइट। एंड बाय द एंड वी विल कनेक्ट दिस एडमिन होम एरिया टू अवर लॉगिन पेज। ऑलराइट, सो मैं ये मास्टर पेज को क्लोज करती हूँ। फर्स्ट पेज दैट आई विल ओपन इज admin home.aspx पेज। admin home.aspx पेज एज यूजुअल हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे दैट दिस इज एडमिन होम एरिया। अगर आपको यहाँ पे कोई और चीज प्लेस करनी है तो आप वो भी प्लेस कर सकते हो, अगर आपको इमेज प्लेस करनी है तो आप इमेज भी प्लेस कर सकते हो, राइट। बट राइट नाउ आई विल राइट दैट इज एडमिन होम एरिया। सो फॉर दैट पर्पज मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर को सिलेक्ट किया, बिकॉज हम और कोई भी चीज को चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव सिलेक्टेड this that is content placeholder control, उसका स्मार्ट टैग मैंने ओपन किया। स्मार्ट टैग के अंदर आई विल सिलेक्ट क्रिएट कस्टम कंटेंट, इसके ऊपर मैंने सिलेक्ट किया। सो ये कंट्रोल एडिटेबल मैनर में आ गया। नाउ विद इन दैट आई विल राइट दिस इज एडमिन होम एरिया, राइट। सो द थिंग, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है दैट इज दिस इज एडमिन होम एरिया। सो दिस इज क्रिएटेड। अब इसके ऊपर अभी मुझे और कोई भी चीज नहीं रखनी है, अगर आपको और कोई चीज रखनी है तो आप वो भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू मेक एनी अदर चेंजेस ऑन दिस पेज। सो मैं इसको क्लोज करती हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्यू फैकल्टी पेज, इट्स ओवर हियर, राइट। मैंने व्यू फैकल्टी का पेज यहाँ पे ओपन किया, डिजाइन में मैं गई एंड आई विल सिलेक्ट कंटेंट प्लेस होल्डर, उसके स्मार्ट टैग में से आई विल सिलेक्ट क्रिएट कस्टम कंटेंट। सो नाउ आई कैन एडिट दिस कंटेंट प्लेस होल्डर। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मुझे सारे फैकल्टीज जो टेबल के अंदर है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। नाउ इफ आई वांट टू डिस्प्ले फैकल्टीज, ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ टूल बॉक्स में बहुत सारे डेटा कंट्रोल्स है। सो वो डेटा कंट्रोल्स में से हम अभी कोई भी यूज कर सकते हैं, बट राइट नाउ आपको एक ही कंट्रोल पता है दैट इज ग्रिड व्यू कंट्रोल। सो हम वही यहाँ पे यूज करेंगे। एज आई हैव टोल्ड, हम सारे डेटा कंट्रोल्स का पूरा एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर हम अराउंड 10 to 11 पेजेस क्रिएट करेंगे, और उसके ऊपर सारे कंट्रोल्स को डिफरेंट वे से कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। दैट्स व्हाई राइट नाउ आई एम ओनली यूजिंग ग्रिड व्यू कंट्रोल। सो मैंने यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल प्लेस किया। नाउ एज यू नो कि आप अलग अलग मतलब वे से ग्रिड व्यू के साथ आप अपना डेटा सोर्स बाइंड कर सकते हो। आप यहाँ पे क्वेरी भी लिख सकते हो, दैट इज कोड व्यू में जाके। एंड द सेकंड ऑप्शन मैंने आपको समझाया है कि अगर आपको क्वेरी नहीं लिखनी है तो आप यहाँ से स्मार्ट टैग में से डेटा सोर्स सिलेक्ट करके आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे तो भी आपका टेबल यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ अटैच हो जाएगा। सो लेट्स डू द सेम प्रोसीजर, राइट। मैंने आपको बोला था कि आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, राइट। सो ग्रिड व्यू है, मैंने उसको सिलेक्ट किया तो उसका स्मार्ट टैग ओपन हुआ, राइट। उसके स्मार्ट टैग में से यहाँ पे ऑप्शन है चूज डेटा सोर्स, और चूज डेटा सोर्स के अंदर अभी नन है। मैं उसका कॉम्बो बॉक्स ओपन करूंगी। आई विल सिलेक्ट सेकंड ऑप्शन दैट इज न्यू डेटा सोर्स। जैसे ही मैंने न्यू डेटा सोर्स को सिलेक्ट किया, वन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, राइट। From this dialog box, I will select second option that is SQL database because my database is within SQL Server database. So मैंने SQL database यहाँ पे select किया। By default data source का ID आ गया that is SQL data source 1. I will click on OK. Right, as soon as I have clicked on OK,
इट इज आस्किंग मी कनेक्शन स्ट्रिंग, हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है ऑलरेडी, दैट इज con, जो हमने web.config फाइल में लिखी हुई है. सो आई विल सिलेक्ट दैट इज con. यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी. नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. As soon as I clicked on next, मुझे यहाँ पे list of tables मिल रहा है. Right now within my database there are only 2 tables, that is TBL feedback and TBL users. Obviously I will select TBL users. From TBL users अब मुझे सारी fields display नहीं करनी है, so मैं asterisk check mark को निकाल दूंगी and I will select name, address, birth date, gender, hobbies, age, username, ईमेल. यूजर टाइप तो मुझे पता ही है कि फैकल्टी होने वाला है एंड मोबाइल नंबर. मुझे सिर्फ इतनी फील्ड्स चाहिए. सो मैंने इंडिविजुअली जितनी फील्ड्स मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी. नाउ यहाँ पे ऐसे ही यूजर्स डिस्प्ले करने हैं जो यूजर टाइप फैकल्टी है. सो ऑब्वियसली वी नीड टू प्रोवाइड वेयर क्लॉज. सो हम यहाँ पे वेयर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे. वेयर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो मुझे यहाँ पे कॉलम पूछेगा. ऑब्वियसली कौन से कॉलम के ऊपर मुझे क्लॉज देना है, यूजर टाइप. सो मैंने यहाँ पे यूजर टाइप सिलेक्ट किया. ऑपरेटर ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट इक्वल टू. सोर्स, अभी जो भी बाकी सारे जो सोर्स है उसमें नहीं है मेरी वैल्यू, सो आई विल सिलेक्ट नन. एज सुन एज आई हैव सिलेक्टेड नन, वो मुझे यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू पूछ रहा है. विद इन दैट आई विल राइट फैकल्टी, बिकॉज मुझे पता है कि यूजर टाइप के अंदर फैकल्टी इनपुट किया हुआ है. एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड. जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया यहाँ पे वेयर क्लोज ऐड हो गया. आई विल क्लिक ऑन ओके एंड यू विल एबल टू सी कि हमारी क्वेरी यहाँ पे फॉर्म हो गई. राइट. आफ्टर दैट अगर आपको ऑर्डर बाय क्लोज देना है तो आप ऑर्डर बाय क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो. शॉर्ट बाय यहाँ पे पूछ रहा है, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेम वाइज आपको सर्च करना है, सो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो. जैसे ही आप नेम सिलेक्ट करोगे यहाँ पे वो ऑर्डर पूछ रहा है, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग. ऑब्वियसली अभी मैं असेंडिंग रहने देती हूँ. राइट. सो एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ओके. सी अगेन द क्वेरी हैज बीन चेंज. यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज ऐड हो गया. नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. आई विल टेस्ट द क्वेरी. ऑब्वियसली वो मुझे पूछ रहा है कि यूजर टाइप में फैकल्टी चाहिए. यस आई नीड फैकल्टी. आई विल क्लिक ऑन ओके. अभी हमारे पास टेबल में एक ही फैकल्टी है, राइट, दैट इज ऑफ यूजर नेम निकिशा. सो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एंड आई विल क्लिक ऑन फिनिश. राइट. जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगी ये जो पूरा हमारा ग्रिड व्यू है उसके अंदर वही फील्ड्स डिस्प्ले होंगी जो हमने चेकबॉक्स से वो जो लिस्ट ऑफ फील्ड्स थी वहां से चेक की हुई है, मतलब सिलेक्ट की हुई है. राइट. नाउ अनदर थिंग, यहाँ पे वो हमें और भी चेकबॉक्स दे रहा है, दैट इज यू वांट टू एनेबल पेजिंग. देखो जैसे ही मैं एनेबल पेजिंग के ऊपर क्लिक करूंगी, राइट, हमारा ग्रिड व्यू बड़ा हो गया और यहाँ पे 1 और 2 दो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं. मीन्स वो हमें पेजिंग करके देगा. अगर हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स है तो 10 के 2 पेजेस वो अपने आप क्रिएट कर देगा. एनेबल शॉर्टिंग करूंगी, सो वो क्या किया उसने, देखिए ये जो फील्ड्स है उसको हाइपरलिंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया. मतलब ये फील्ड के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके देगा. एनेबल सिलेक्शन का भी यूज कर सकते हैं लेकिन अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सिलेक्ट करने के बाद हम उसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म नहीं करने वाले. राइट. सो अभी मैं यहाँ पे कोई भी चीज नहीं करूंगी. राइट. ऑलराइट. सो ये हमारा व्यू फैकल्टी का पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया. उसको मैं सेव करती हूँ. राइट. ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स आपको पता थे, सिर्फ हमने दो चीज नहीं की, दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज के बटन के ऊपर हमने क्लिक किया, नेम के ऊपर शॉर्टिंग किया और उसके बाद ये जो स्मार्ट टैग है इसके अंदर ये 2 ऑप्शंस है, दैट इज एनेबल पेजिंग एंड एनेबल शॉर्टिंग, वो हमने चेक किया. राइट. मैं ये पेज क्लोज करती हूँ. एंड द लास्ट पेज दैट आई नीड टू डिजाइन, दैट इज व्यू फीडबैक. राइट. अगेन आई विल मूव ऑन टू डिजाइन. कंटेंट प्लेस होल्डर को मैं एडिटेबल बना दूंगी. अगेन फीडबैक डिस्प्ले करना है, सिंपल मैं ग्रिड व्यू कंट्रोल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी. अगेन 2 वेज, कोडिंग भी कर सकते हो या फिर स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हो. यहाँ पे तो मुझे सिर्फ सारे फीडबैक्स ही डिस्प्ले करने हैं, सो मैं सिंपल स्टेप्स परफॉर्म करूंगी तो भी चलेगा. स्टेप्स में मैं क्या करूंगी, चूज डेटा सोर्स, नन है. सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी, दैट इज न्यू डेटा सोर्स. I will select second option, that is SQL database. ID यहाँ पे आ जाएगा. Okay.
एंड देन आई विल सिलेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग नेम, इट इज CON। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट देखिए TBL फीडबैक का टेबल सिलेक्ट किया हुआ आ रहा है, सो यहाँ पे है ही वही वो टेबल। एस्ट्रिक भी चेक मार्क है, मतलब 2 फील्ड्स है, मुझे दोनों फील्ड चाहिए, राइट। एंड आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आई विल क्लिक ऑन टेस्ट क्वेरी, राइट। तो जितने भी फीडबैक्स यूजर ने दिए थे वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, बिकॉज ना ही हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज दिया है और ना ही हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज दिया है, राइट। राइट, आई विल क्लिक ऑन फिनिश। एज सुन एज आई क्लिक ऑन फिनिश, हमारा ग्रिड व्यू चेंज हो जाएगा, उसके साथ टेबल अटैच हो जाएगा। सी ओवर हियर, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है अगेन, एनेबल पेजिंग एंड एनेबल शॉर्टिंग, राइट। वो दोनों चीज मैंने यहाँ पे चेक कर दी। ऑटो फॉर्मेट भी दे देते हैं, चलो कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं। आई विल सिलेक्ट ब्लैक एंड ब्लू एंड आई विल क्लिक ऑन ओके, राइट। सो वो ऑटो फॉर्मेट भी यहाँ पे हो गया। मीन्स वी हैव क्रिएटेड ऑल द पेजेस ऑफ एडमिन होम एरिया, राइट। अब हमें क्या टास्क करना है, हमें ये एडमिन होम एरिया को लॉगिन के साथ कनेक्ट करना है। सो आई विल क्लोज दिस पेज, मैं लॉगिन पेज ओपन करूंगी, इट्स ओवर हियर, राइट। लॉगिन पेज के ऊपर लॉगिन बटन की क्लिक इवेंट में ओपन करूंगी एंड ओवर हियर हमें क्या करना है, हमने जो यूजर टाइप एडमिन ली है वहां पे हमें response.redirect का स्टेटमेंट लिखना है, बिकॉज हमने यहाँ पे सारी चीजें सेट कर दी है, क्वेरी है, एग्जीक्यूट की है, हमने चेक किया है कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमने यूजर नेम सेशन में ऐड कर दिया है, and we have already attached 2 home area, that is of student and faculty. Now the last home area is of admin, so I will write over here that is response.redirect, and within that I will write admin home dot aspx. So हमने यहाँ पे admin home area भी connect कर दिया, right? So I will save this page and after that हम execute करके देखते हैं, right? So मैंने execution start किया, the page will be loaded in the browser. See, we are able to see index.aspx page. यहाँ पे feedbacks है, right, जो यहाँ पे display हो रहे हैं, right. पहले हम एक और faculty का registration कर देते हैं, because हमारे पास सिर्फ एक ही faculty है, right. So हम faculty का registration करेंगे. Let's give faculty name as let's take it Sangeeta Makhija. Address is Surat. कोई भी अभी एक सिंपल डेट सिलेक्ट कर देते हैं एज अ बर्थ डेट, राइट. जेंडर इज फीमेल, हॉबीज कैन बी डांसिंग, रीडिंग, राइट. एज फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट एज 29. यूजर नेम वी विल टेक इट एज संगीता. पासवर्ड वी विल टेक इट एज संगीता. कंफर्म पासवर्ड वी विल टेक इट एज संगीता. ईमेल विल बी sangeeta@gmail.com. User type obviously it will be as a faculty. Mobile number कोई भी 10 digits दे देते हैं, right. And then I will click on submit, right. जैसे ही मैंने submit पे क्लिक किया, registration successful का मैसेज आया, right. registration successful के मैसेज के बाद obviously वो हमें कहाँ पे navigate करके देगा, वो हमें login पेज के ऊपर navigate करके दे देगा. See, login पेज यहाँ पे ओपन हो गया. अब मुझे एडमिन होम एरिया चेक करना है और हमने एक यूजर क्रिएट किया था, दैट वाज एडमिन. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एडमिन. पासवर्ड वाज आल्सो एडमिन, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. यूजर टाइप आई विल सिलेक्ट एज एडमिन एंड आई विल क्लिक ऑन लॉगिन बटन, राइट. जैसे ही मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, वो यहाँ पे एडमिन होम एरिया के ऊपर उसने नेविगेट करके दे दिया, राइट. एडमिन होम एरिया के ऊपर उसने हमें नेविगेट करके दे दिया, राइट. अब हमें क्या करना है, बाकी सारे पेजेस हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट लेट्स चेक इट फीडबैक्स. जैसे ही मैंने फीडबैक्स के ऊपर क्लिक किया, उसने सारे फीडबैक्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए, राइट. और फीडबैक्स डिस्प्ले मतलब जो हमने जो ग्रिड व्यू यूज किया था उसमें सारे फॉर्मेटिंग के साथ उसने फीडबैक्स डिस्प्ले कर दिए. नाउ आई विल क्लिक ऑन फैकल्टी डिटेल्स. जैसे ही मैंने फैकल्टी डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया, सी हमारे पास 2 फैकल्टीज थे, दैट इज ऑफ निकिशा एंड संगीता. वो दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए. हमने ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया था, इसलिए ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है, राइट. अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कोई भी फील्ड के ऊपर शॉर्टिंग कर सकती हूँ.
सो लेट्स डू, हम यहाँ पे कौन सी यूजर नेम के ऊपर शॉर्ट करके देखते हैं। देखो मैंने यूजर नेम की जो फील्ड है उसके ऊपर जैसे ही मैंने कर्सर मूव किया वो हैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मीन्स उसने हाइपरलिंक यहाँ पे क्रिएट की है। सो मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ, राइट। जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया उसने असेंडिंग ऑर्डर में उसको कंसीडर किया, सेकेंड टाइम क्लिक करूंगी तो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कंसीडर किया, और संगीता का जो रिकॉर्ड है वो फर्स्ट आ गया एंड निकिशा का रिकॉर्ड है वो सेकंड हो गया, राइट। इफ अगेन आई विल क्लिक ऑन यूजर नेम, वो फिर से असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करके दे देगा। सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए जो भी है वो यहाँ पे पहले निकिशा आ गया रिकॉर्ड और सेकंड संगीता आ गया। अगर आप एज के ऊपर करोगे तो लाइकवाइज सेम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वो कन्वर्ट कर देगा, राइट। फिर आप एड्रेस के ऊपर करोगे तो वो भी वो असेंडिंग डिसेंडिंग में वो कन्वर्ट कर देगा, एंड लाइकवाइज आप नेम के ऊपर क्लिक करोगे तो वो भी उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको कन्वर्ट करके दे देगा, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट इज वेलकम, और हमारा यूजर नेम दैट इज एडमिन जो हमने यहाँ पे लेबल के अंदर डिस्प्ले किया है। नाउ हम एडमिन होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उसने हमें एडमिन होम एरिया का जो पेज है दैट इज adminhome.aspx उसके ऊपर हमें नेविगेट करके दे दिया, राइट। एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन लॉग आउट। लॉग आउट के ऊपर हमने 2 फंक्शनलिटीज की है। फर्स्ट हमने सेशन को डिस्ट्रॉय किया और सेकेंड इंडेक्स पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स पेज हमें दिखाई दे रहा है, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द होल वेबसाइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने बाकी सारी जो वेबसाइट है उसके हिसाब से सारी फंक्शनलिटीज यहाँ पे की है, नो। अभी तक बहुत सारी फंक्शनलिटीज बाकी है, दैट इज चेंज पासवर्ड है, फॉरगॉट पासवर्ड है, ये सारी फंक्शनलिटीज बाकी है। मगर हमने ऐसी एक वेबसाइट डिजाइन करके यहाँ पे देखी जिसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स है वेबसाइट के, राइट, जो अवेलेबल है ASP.NET के अंदर विथ कंट्रोल्स, वो हमने सारी चीज यहाँ पे देखी, right. First we have seen the concept that is master page. We have seen what is the significance of master page, because आपने जैसे ही एक टाइम पूरी डिजाइन क्रिएट कर दी आप उसके ऊपर से सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हो, right. So that is the most important concept in ASP.NET कि आप मास्टर पेज आप एक बार डिजाइन कर दोगे तो आप जितने भी पेजेस उसके ऊपर से क्रिएट करोगे वो सारे पेजेस के ऊपर आपको कंसिस्टेंट लेआउट मिलेगा, राइट। उसके बाद हमने दूसरे बहुत सारे कंट्रोल्स देखे, राइट। सो हम विद ब्रीफ रिवीजन कर देते हैं पूरा। हमने यहाँ पे ये जो पहला मास्टर पेज और नेस्टेड टेबल कंसेप्ट वो हमने पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे किया था, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, मास्टर पेज के ऊपर नेस्टेड टेबल का कंसेप्ट यूज किया था। ये जो फर्स्ट यहाँ पे कॉलम है जहाँ पे हमने लोगो रखा है वहां पे भी हमने इमेज बटन का इमेज कंट्रोल का यूज किया था, और ये भी हमने इमेज कंट्रोल का यूज करके यहाँ पे इमेज रखी है। ये एड रोटेटर कंट्रोल है जो हम रिफ्रेश करेंगे, राइट, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वो इमेज चेंज करके हमें दे देगा, बट अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। उसने क्राइटेरिया क्या लिया है हमने कि अगर एक एडवर्टाइजमेंट 2 टाइम्स डिस्प्ले होती है तो दूसरी एडवर्टाइजमेंट वो 1 टाइम डिस्प्ले करके देगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये रिफ्रेश होगा। यहाँ पे हमने ये कैलेंडर कंट्रोल रखा है, और ये कैलेंडर कंट्रोल के बाजू में हमने यहाँ पे क्या रखा है, ये साइट मैप पाथ कंट्रोल है जो हम पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये डिस्प्ले करेगा। देखो यहाँ पे इमेज चेंज हो गई। मैंने अभी अबाउट अस पेज के ऊपर क्लिक किया है, कॉन्टेक्ट अस, फीडबैक, यहाँ पे हम फीडबैक भी दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वो तो हमने अभी ही करके देखा, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर हमने सारी फील्ड्स कंसीडर्ड की विथ वैलिडेशंस, और वैलिडेशन करने के लिए हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज किया था जो ऑलरेडी ASP.NET के अंदर अवेलेबल है विद इन वैलिडेशन टैब, राइट। वैलिडेशन कंट्रोल कहाँ पे अवेलेबल है, विद इन वैलिडेशन टैब ऑफ टूल बॉक्स। वैलिडेशन कंट्रोल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, वैलिडेशन कंट्रोल्स अगर हम यूज करेंगे तो हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट या कोई भी लॉजिक नहीं रखना पड़ेगा अगर जो बेसिक वैलिडेशन कंट्रोल है वो हम यूज करते हैं तो। बट इफ वी आर यूजिंग कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल, राइट, तो हमें उसके अंदर लॉजिक लिखना पड़ेगा कि वो वैलिडेशन कैसे वर्क करेगा,
राइट इसके ऊपर हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल यूज किए, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, कैलेंडर है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स कंट्रोल है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है और बटन है, राइट। देन वी हैव क्रिएटेड लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के ऊपर भी हमने वैलिडेशंस रखे हैं, उसके लिए भी ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल्स हमने रखे थे, एंड दिस इज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जिसके अंदर हमने यूजर टाइप डिस्प्ले की है, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ बटन कंट्रोल। Now another important thing of validation page is हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने सेशन का भी यूज किया है, राइट। आप अगर कोड में जाके देखोगे तो हमने सेशन का भी यूज किया है, एंड सेशन एज आई हैव ऑलरेडी told you that it is server side state management technique. Again I repeat, session is server side state management technique. वो particular user का वो जो भी जहां से सेशन स्टार्ट होगा और सेशन डिस्ट्रॉय होगा, वो दोनों के बीच का जो भी ड्यूरेशन है वहां तक का पूरा यूजर का स्टेट वो हमें दे सकता है अगर हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और मेथड्स का यूज करें तो। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही काम किया है विद इन सेशन कि हमने जो यूजर नेम था वो हमने सेशन के अंदर स्टोर कर दिया है। जैसे ही मैंने यूजर नेम सेशन के अंदर स्टोर किया, दैट इज विद इन यू नेम वेरिएबल, नाउ आई विल एबल टू रिट्राइव दिस वैल्यू ऑन एनी पेज आफ्टर दिस पेज। मतलब लॉगिन पेज के बाद मैं जितने भी पेजेस ओपन करूंगी वो सारे पेजेस के ऊपर मैं सेशन में से ये यू नेम वेरिएबल की वैल्यू में रिट्राइव कर सकती हूँ। बट द क्राइटेरिया इज दैट वहां पे अगर मैंने एक बार लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर दिया, ऑब्वियसली उसका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद हम वो यूजर नेम को रिट्राइव नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैंने जितने भी वेलकम मैसेजेस लिखे हैं वो होम एरिया के अंदर लिखे हैं। मैंने कोई भी इंडेक्स पेज या गेस्ट यूजर के पेजेस के ऊपर मैंने नहीं लिखे हैं। गेस्ट यूजर के पेजेस मतलब, गेस्ट यूजर मतलब ऐसा यूजर के जो हमारी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट है। गेस्ट मतलब रजिस्टर्ड नहीं है ऐसा यूजर, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो हमारे वेबसाइट का ऑथेंटिकेटेड यूजर बन जाएगा। अगेन आई रिपीट, वो हमारी वेबसाइट का ऑथेंटिकेटेड यूजर बन जाएगा, और ऑथेंटिकेटेड यूजर के पास ऑथोराइजेशन होता है कि वो कौन कौन से पेजेस को एक्सेस कर पाएगा। अगेन आई रिपीट, ऑथेंटिकेटेड यूजर के पास ऑथोराइजेशन होगा कि वो लॉगिन करने के बाद वो कौन कौन से पेजेस को एक्सेस कर पाएगा। As you have seen, we have created 3 different home areas, that is student home area, faculty home area and admin home area, और तीनों तीन home area के अंदर we have created different kinds of pages for different kinds of functionalities. अगर आप admin की यूजर टाइप का यूज करके आप लॉग इन करते हो, then you will not be able to access the pages which we have created for student and faculty. Likewise, अगर आप student user type से log in करते हो, then you will not able to access the pages that we have created within faculty and admin. So this is the authorization. आपने कौन कौन से पेजेस के ऊपर आपने पर्टिकुलर यूजर टाइप को अथॉरिटी दी है। So these are the different terms कि जो आपको याद रखने हैं, that is what is guest user, what is authenticated user and what is authorization or authorized user, right? So हमने इतना लॉगिन पेज के ऊपर किया था, एंड अकॉर्डिंग टू द यूजर टाइप हमने पर्टिकुलर होम एरिया के ऊपर नेविगेट करके दे दिया है। नाउ लेट्स सी, हम पहले स्टूडेंट का लॉगिन करते हैं। स्टूडेंट के लॉगिन में एबीसी, राइट, यूजर टाइप स्टूडेंट एंड लॉगिन, राइट। लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, ये स्टूडेंट का होम एरिया ओपन हुआ। स्टूडेंट के होम एरिया के अंदर ये जो वेलकम मैसेज हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, लॉग आउट वो लिंक बटन है, ये इमेज बटन है, और ये सारी हाइपर लिंक्स है, हाइपर लिंक कंट्रोल है। दिस इज लिस्ट ऑफ कोर्सेज, यहाँ पे हमने ये बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल का यूज किया है। सब्जेक्ट्स पेज के ऊपर ये चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल का यूज किया है, ये रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल का यूज किया है, और जैसे ही मैं कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करूंगी बाय सिलेक्टिंग सम सब्जेक्ट्स, राइट, सो ये जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है वो हमने लिटरल कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले की है। आफ्टर दैट अपलोड पिक पेज, अपलोड पिक के ऊपर हमने ये इमेज कंट्रोल का यूज किया था, ये फाइल अपलोड कंट्रोल है, और फाइल अपलोड कंट्रोल के बाजू में हमने यहाँ पे अपलोड बटन का यूज किया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट होम एरिया। फैकल्टी होम एरिया के अंदर हमने क्या क्या चीज की है,
let's log in as a faculty, right? We will select user type as faculty, login. All right, so this is faculty home area. उसके ऊपर ये मेनू कंट्रोल का यूज किया है. जो ये सेकंड लिंक है दैट इज स्टूडेंट डिटेल्स, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज व्यू स्टूडेंट, जो सारे स्टूडेंट्स डिस्प्ले करेगा. देखिए यहाँ पे ये जो फोटो की फील्ड है, राइट, आप देख सकते हो जो पाथ हमने स्टोर किया था वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. दैट इज द पाथ दैट स्टार्ट्स विथ टिल्ड साइन. और ये जो सेकंड स्टूडेंट था दैट इज जो हमने बाद में क्रिएट किया था, उसके लिए हमने कोई भी फोटो ऐड नहीं किया था, इसलिए वो ब्लैंक डिस्प्ले कर रहा है, राइट. आफ्टर दैट गेट स्टूडेंट डिटेल्स का पेज, और गेट स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर हमने ये इसके क्लिक के ऊपर हमने मल्टी व्यू कंट्रोल का यूज किया है ताकि वो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यू प्रोवाइड कर पाए. एज के ऊपर हमने क्राइटेरिया लिया था दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर. आई एम प्रोवाइडिंग ओवर हियर 25. एज रिपोर्ट ऑब्वियसली 29 एज का जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल्स वो डिस्प्ले कर रहा है. जेंडर के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगी फॉर एग्जांपल मेल, लेट्स टेक इट एज फीमेल. सो वो फीमेल यूजर स्टूडेंट है उसकी डिटेल वो डिस्प्ले करेगा. एंड बोथ के अंदर हमने क्राइटेरिया दिया था दैट इज इक्वल टू एज. सो इक्वल टू एज के अंदर लेट्स गिव इट एज 29 और जेंडर है मेल एंड आई विल क्लिक ऑन बटन. सो उसने वो रिपोर्ट डिस्प्ले कर दिया. I will again click on log out. Admin home area एक बार देख लेते हैं. Login is admin. So मैंने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड admin select किया, यूजर टाइप admin select किया. I will click on login. Login के ऊपर मैंने क्लिक किया. So this is admin home area. Admin home area के अंदर हमने ये जो दोनों different kinds of report यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, हमने ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज किया है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमने कोई भी क्वेरी नहीं लिखी, जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन सम स्टेप्स, राइट, हमने ये पूरा रिपोर्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है अलोंग विथ वेयर क्लॉज एंड अलोंग विथ शॉर्टिंग, राइट. सो ये शॉर्टिंग आप यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हो. देखो फीडबैक के ऊपर भी हमने शॉर्टिंग किया है, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट. दिस इज ऑल्सो ग्रिड व्यू कंट्रोल. And these are link button controls, right? And I will click on log out. So students, this is a simple way how we can design the website or how we can develop the website. जिसके अंदर आप simple थोड़े बहुत controls का use कर सकते हो, फीचर्स है जो ASP.NET के अंदर उसका यूज कर सकते हो और आप अच्छी तरह से एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, राइट. मैंने ये वेबसाइट थ्रू आपको बहुत सारे कंट्रोल्स एक्सप्लेन किए जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो, राइट. सो अगर हम ये विजुअल स्टूडियो के अंदर टूल बॉक्स में देखें, सो आई थिंक कि अब तक हमने बहुत सारे कंट्रोल्स कंप्लीट कर दिए हैं, राइट. इफ वी मूव ऑन टू स्टैंडर्ड टैब, तो स्टैंडर्ड टैब में से अगर मैं देखूंगी तो कितने कंट्रोल्स बाकी है वो हम देख लेते हैं. First is this hidden field control, then it is image map control, और दूसरा सिलेबस में है that is panel control, placeholder control. Okay, इतने कंट्रोल्स आपके सिलेबस में है और उतने बाकी है, राइट. ये जो सब्स्टिट्यूशन है, फिर ये विजार्ड है, XML है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, राइट. सो इसमें से सिर्फ ये 3 कंट्रोल्स आई थिंक, प्लेस होल्डर, पैनल, इमेज मैप एंड remaining is hidden field, ये 4 कंट्रोल्स बाकी है, राइट. दैट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड टैब. डेटा टैब में से हमने सिर्फ ग्रिड व्यू कंट्रोल देखा है, लेकिन मैं आपको पूरा एक एग्जांपल करवाऊंगी जिसके अंदर हम बाकी सारे कंट्रोल्स देख लेंगे, राइट. वैलिडेशन हमने सारे कंट्रोल्स देख लिए, सो दैट इज कंप्लीटेड. नेविगेशन अगेन हमने सारे कंट्रोल्स कंप्लीट कर दिए, दैट इज कंप्लीटेड. लॉगिन कंट्रोल्स हमारे बाकी है, उसके लिए भी हम एक पूरा एग्जांपल देखेंगे. इट विल बी कंप्लीटेड इन 1 लेक्चर, राइट. एंड आफ्टर दैट दूसरा जो आपके सिलेबस में है दैट इज दिस HTML कंट्रोल, राइट. HTML कंट्रोल के अंदर ऑब्वियसली जो टैग्स है उसके ऊपर से कंट्रोल बनाए हैं, मींस दिस कंट्रोल्स आर सिमिलर टू द टैग्स. देखो आप देखोगे तो इन बटन के लिए भी इनपुट है जो आपने ऑलरेडी HTML में किया है, राइट. सो ये भी हम एक लेक्चर में हम पूरा देख लेंगे, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल्स. Now one another important thing that you need to consider over here is, आप ये सोर्स में देखोगे तो यहाँ पे see over here, ये टेक्स्ट बॉक्स है. टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी रन एट
इज इक्वल टू सर्वर, ये एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है, राइट। आप कोई भी कंट्रोल देखोगे, राइट, ये देखो वैलिडेशन कंट्रोल है, दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, वहां पे भी एक प्रॉपर्टी है दैट इज रन एट इज इक्वल टू सर्वर। ASP.NET के अंदर जो भी चीज आप यूज करोगे वो सारी चीजों के साथ, राइट, आपको ये एट्रीब्यूट मिलेगा दैट इज रन एट इज इक्वल टू सर्वर। What is the significance of this property? As the name says, ये पेज कहाँ पे रन होगा? It will be executed on server. ये प्रॉपर्टी ये स्पेसिफाई करता है कि ये कंट्रोल, राइट, जो ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर रखा है वो सर्वर के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा, right? Because ASP.NET is server-side scripting language. So explicitly आप जब भी कोई भी कंट्रोल प्लेस करोगे उसके साथ ये run at is equal to server प्रॉपर्टी अपने आप ऐड हो जाएगी, और उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये कंट्रोल ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर सर्वर के ऊपर रन होगा। So this is the most important thing and it is also important for exam. Another important property which is important for both the thing, that is आप जब वेबसाइट डेवलप करोगे तब भी और एग्जाम के लिए भी, that is causes validation property. Again I repeat, that is causes validation property हमने रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर यूज की थी। अगर आपको याद हो तो रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर ये जो रिसेट बटन है उसकी हमने कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट किया था। क्यों फॉल्स सेट किया था? बिकॉज रिसेट बटन के ऊपर जब भी हम क्लिक करते थे तो उसके ऊपर भी वैलिडेशंस एग्जीक्यूट हो रहे थे, और ऑब्वियसली रिसेट बटन के ऊपर हमें वैलिडेशंस एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। दैट्स व्हाई हमने रिसेट बटन की कॉजेज वैलिडेशन प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट किया। इट मीन्स ये पर्टिकुलर बटन के ऊपर वैलिडेशंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। एंड along with that हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज की थी that is on the submit button, it's over here, is valid property. is valid property अब जब भी ऐसे कोई वैलिडेशंस रखोगे तो आपको अगर चेक करना है कि ये सारे वैलिडेशंस ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो आप वहां पे is valid प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। Again I repeat, is valid property is of page class. That's why मैंने यहाँ पे डायरेक्ट if कंडीशन में is valid लिखा है। अगर आप if page dot is valid लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे by default उसने page class consider कर लिया है, right? So again I repeat, is valid property का significance क्या है कि वो हमें चेक करके देगा कि पेज के ऊपर सारे validations perfectly execute हुए हैं कि नहीं हुए हैं। Right, students? So this is all about our website, that is student management system, right? जिसके अंदर हमने बहुत सारे concepts, बहुत सारे controls use किए along with database interactions, session and validations. बहुत सारे दूसरे features अभी बाकी है, controls अभी बाकी है जो हम next lectures में देखेंगे। अगर आपको कोई difficulty है या फिर doubt है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर हम यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं।